بلدیاتی اداروں میں مالی بحران شدت اختیار کر گیا ہے۔ ریٹائرڈ ملازمین واجبات کی عدم ادائیگی پر KMC ہیڈ آفس کے باہر اہل خانہ کے ہمراہ عید منانے کا اعلان کر چکے ہیں، جبکہ حاضر سروس ملازمین نے بقایا جات نہ ملنے پر عید آپریشن ڈیوٹی سے انکار کر دیا ہے۔ رضوان احمد کی رپورٹ۔ واجبات رکے تو احتجاج بڑھ گیا، ریٹائرڈ ملازمین سڑکوں پر آ گئے۔ بلدیاتی اداروں کے ریٹائرڈ اور حاضر سروس ملازمین کے واجبات کی عدم ادائیگی کا معاملہ سنگین رخ اختیار کر گیا ہے۔ KMC ہیڈ آفس کے باہر ملازمین نے احتجاج کرتے ہوئے حکومت اور بلدیاتی انتظامیہ کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ میونسپل ورکرز ٹریڈ یونین الائنس کے صدر سید ذوالفقار شاہ کا کہنا ہے کہ ادائیگیوں کے معاملے کو صرف سمریوں میں الجھا کر رکھا گیا ہے۔ ریٹائرڈ ملازمین کئی ماہ سے اپنے واجبات کے منتظر ہیں، جبکہ حاضر سروس ملازمین بھی شدید مالی مشکلات کا شکار ہیں۔ انہوں نے خبردار کیا کہ اگر فوری ادائیگیاں نہ کی گئیں تو احتجاج کا دائرہ مزید وسیع کیا جائے گا۔ KMC نے حکومت سندھ کو ایک لیٹر لکھ دیا، جس طرح اکتوبر 2023 میں لکھا تھا، اور وہ لیٹر میں یہ تحریر کیا کہ اگر حکومت سندھ نے پیسے جاری نہیں کیے تو اس عید الاضحیٰ پہ جو ہے نا وہ پینشنر کی جو 3300 پینشنر ہیں ان کی پینشن بند کر دی جائے گی۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ تنخواہوں سے ٹیکس تو باقاعدگی سے کاٹا جا رہا ہے، لیکن بجٹ میں اعلان کردہ تنخواہوں کا اضافہ آج تک ادا نہیں کیا گیا، جس کے باعث گھریلو اخراجات پورے کرنا مشکل ہو چکا ہے۔ ملازمین کے مطابق مہنگائی کے موجودہ دور میں بقایا جات کی عدم ادائیگی نے ان کی مشکلات میں مزید اضافہ کر دیا ہے، اور اگر یہی صورتحال برقرار رہی تو عید آپریشن ڈیوٹی دینا ممکن نہیں ہوگا۔ سر جی بالکل نہیں کریں گے، مہنگائی اتنی ہو گئی ہے، ہم بہت زیادہ پریشان آ گئے ہیں، حد سے زیادہ۔ بلاول بھٹو نے پچھلے سال 12% بڑھائے تھے، جو ابھی تک ہمارے کو نہیں ملے۔ الٹا جو ابھی ٹیکس کٹ رہا ہے وہ پہلے کاٹ رہے ہیں، لیکن ہمارا ان کو 12% یاد نہیں ہے، ہمارا ٹیکس یاد ہے ان کو۔ ریٹائرڈ ملازمین نے اہل خانہ کے ہمراہ KMC ہیڈ آفس کے باہر عید منانے کا اعلان بھی کر دیا ہے، جبکہ ملازمین نے خبردار کیا ہے کہ مسائل حل نہ ہوئے تو احتجاج میں مزید شدت لائی جائے گی۔ کیمرہ مین حسنین جعفری کے ساتھ رضوان احمد، سٹی 21۔ جوہر آباد کے علاقے صبح نگر دستگیر میں دو گروپوں کے درمیان تصادم کا واقعہ پیش آیا، جس میں ملوث 24 افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ پولیس کے مطابق امن و امان خراب کرنے اور ہنگامہ آرائی میں ملوث دونوں گروپس کے خلاف پولیس کی مدعیت میں مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ واقعہ بچوں کے درمیان معمولی جھگڑے سے شروع ہوا، جو بعد ازاں دونوں خاندانوں کے بڑوں تک پھیل گیا۔ صورتحال اس وقت کشیدہ ہو گئی جب دونوں جانب سے پتھراؤ، جلاؤ گھیراؤ اور ہنگامہ آرائی کی گئی، جس سے علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ اطلاع ملتے ہی پولیس کی بھاری نفری موقع پر پہنچی اور فوری کارروائی کرتے ہوئے حالات پر قابو پا لیا گیا۔ SSP سینٹرل کے مطابق امن و امان برقرار رکھنے کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جا رہے ہیں اور کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ صدر پاکستان گڈز ٹرانسپورٹ الائنس اور سابق رکن سندھ اسمبلی ملک شہزاد اعوان نے کہا کہ کیماڑی میں جرائم کے خلاف پولیس متحرک ہے اور SSP کیماڑی سنگھال ملک بہترین انداز میں فرائض انجام دے رہے ہیں۔ اپنے بیان میں انہوں نے کہا کہ سنگھال ملک کی تعیناتی کے بعد منشیات فروشوں اور دیگر جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کارروائیوں میں تیزی آئی ہے، جس کے مثبت نتائج سامنے آ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بلدیہ ٹاؤن سمیت پورے ضلع کیماڑی کو جرائم سے پاک ہونا چاہیے تاکہ شہری پرامن ماحول میں زندگی گزار سکیں۔ ملک شہزاد اعوان کے مطابق منشیات فروشوں نے کئی نوجوانوں کی زندگیاں تباہ کی ہیں اور اس ناسور کے خاتمے کے لیے سخت اقدامات ناگزیر ہیں۔ ٹرانسپورٹ برادری سندھ پولیس کے شانہ بشانہ کھڑی ہے اور ہر ممکن تعاون جاری رکھا جائے گا۔ سوئسدن صارفین کے لیے اچھی خبر، نیپا فلائی اوور کے قریب گیس پائپ لائن کو بچھانے کا کام مکمل کر لیا گیا۔ ترجمان سوئسدن کے مطابق نیپا فلائی اوور کے قریب گیس پائپ لائنز کی لائرنگ کا کام مکمل کر لیا گیا۔ مرمتی کام آج صبح 8 بجے مکمل ہوا، جس کے بعد متاثرہ علاقوں میں گیس کی فراہمی بحال کر دی گئی۔ لیاقت نیشنل اسپتال، آغا خان اسپتال، کراچی سینٹرل جیل سمیت مختلف علاقوں میں گیس بحال ہو چکی ہیں۔ گلشن اقبال کے تمام بلاکس، PIB کالونی، جمشید روڈ، لائنز ایریا اور PHS سوسائٹی میں بھی گیس فراہم کر دی گئی۔ صدر کھارا در کے بعض علاقوں، لیاری گارڈن اور اطراف میں بھی گیس بحال ہو گئی۔ شہر میں اتوار کے روز بھی گیس بندش برقرار ہے۔ گھروں میں گیس نہ آنے پر شہری مہنگی LPG خریدنے پر مجبور ہیں۔ مختلف علاقوں میں LPG 380 سے 400 روپے فی کلو تک فروخت کی جا رہی ہے۔ شہریوں نے شکوہ کیا کہ گیس تو آتی نہیں لیکن بل وقت پر ضرور آ جاتا ہے۔ کاوش میمن کی رپورٹ دیکھیں۔ ٹھنڈے چولہے، LPG دکانوں پر رش اور مہنگائی سے پریشان شہری
गैस बंदिश ने आवाम की मुश्किलात में इजाफा कर दिया। शहर कायद में इतवार के रोज भी गैस बंदिश का सिलसिला बरकरार है, जिसके बाइस घरों में खाना पकाना शहरियों के लिए एक बड़ा मसला बन गया है। गैस की अदम दस्तयाबी पर शहरियों की बड़ी तादाद LPG दुकानों का रुख करने पर मजबूर हो गई, जहां सरकारी नरखों के बरक्स LPG मनमाने दामों फरोख्त की जा रही है। मुख्तलिफ इलाकों में LPG 380 से 400 रुपए फी किलो तक फरोख्त हो रही है, जबकि शहरियों के मुताबिक सरकारी नरखों और मार्केट कीमत में वाज़ेह फर्क मौजूद है। शहरियों का कहना है कि गैस तो आती नहीं, लेकिन बिल वक्त पर आ जाता है। महंगी LPG का इस्तेमाल घरेलू बजट पर इजाफी बोझ बन चुका है, जबकि मुसलसल गैस बंदिश के बाइस वो मजबूरन महंगा ईंधन इस्तेमाल कर रहे हैं। आज से मेरे ख्याल में साल 1.5 साल पहले 2000-2500 का गैस भरवाता था। अभी इनका जो गैस में भरवाने आता हो ना 5000-6000 का गैस आ रहा है। सही है, अभी कारोबारी बंदा वो कारोबार का क्या करेगा कि अपना निकालेगा, माल का निकालेगा, कारीगर का निकालेगा, किसका निकालेगा। कभी आती है कभी नहीं आती है, बस अभी क्या करें। देखो तभी तो भरवाना है, तभी तो भरवाना है। 400 की भरवा लेते हैं, 800 की 2 भरवाते। नाना खाना सब इसमें होते हैं ना बेटा। गैस तो आता नहीं है, अभी पहले 250 का था, अभी 300-400 में चल रहा है। तो हर जगह पे तंदूर पे होटलों में यही चल रहा है। शहरियों ने हुकूमत और मुताल्लिका इदारों से मुतालबा किया है कि गैस की फराहमी यकीनी बनाई जाए और LPG की मनमाने नरखों पर फरोख्त का फौरी नोटिस लिया जाए। कैमरामैन अहमद अली के साथ काविश मेमन, सिटी 20। फेडरल कैपिटल एरिया में पानी और सीवेज का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। शहरियों का कहना है कि हफ्ते में सिर्फ एक दिन पानी आता है और वो भी गंदा और बदबूदार होता है। सीवेज निज़ाम वबाल जान बन चुका। वफाकी इदारों के मुलाजमीन के रिहाइशगाह समझे जाने वाले इस इलाके में बुनियादी सहूलियात की बदतरीन सूरत हाल पर देखिए रिजवान अहमद की ये रिपोर्ट। मनाजिर हैं कराची के इलाके FC एरिया के, जहां पानी और सीवरेज का बहरान संगीन सूरत इख्तियार कर चुका है। FC एरिया वफाकी महकमों के मुलाजमीन की रिहाइशगाह के तौर पर जाना जाता है, जहां 7000 से जायद फ्लैट्स और तकरीबन 10,000 गैर कानूनी तामीरात मौजूद हैं। इलाका मकीनों के मुताबिक हफ्ते में सिर्फ एक दिन पानी आता है, वो भी आलूदा होता है। गली महलों में जगह जगह सीवरेज का पानी जमा रहने से शदीद मुश्किलात का सामना है। गाड़ियों को इतनी परेशानी हो है, शाकर टूट रहे हैं, जंपे टूट रही हैं और गाड़ी गल रही है, सड़ रही है। जैसे इंसान सड़ रहे हैं जैसे गाड़ियाँ सड़ रही हैं। ये हाल देखें, गाड़ी का क्या हाल हो गया। बाल्टी में पानी गंदा आ रहा है, यही हम लोग इस्तेमाल करते हैं। मजबूरी में पानी है नहीं, बीमारी देख नहीं रही, मेरी आवाज़ नहीं निकल रही, मेरी आंखें, मैं खुद बीमार हो रहा हूँ। शहरी बोले, यहाँ कोई इदारा काम नहीं कर रहा। गटर का पानी सड़कों पर जमा रहता है, बच्चे और बुजुर्ग बीमार हो रहे हैं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं। आबादी बढ़ने के बावजूद पानी और सीवरेज का निज़ाम अपग्रेड नहीं किया गया, जिसके बायस मसाइल में रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है। अभी 2 दिन पहले DC साहब से मीटिंग भी हुई थी। उस मीटिंग में भी हमने ये मामला सारे रखे थे। एक ये गटर लाइन का, दूसरा पानी है तो पानी आ रहा है तो वो भी गटर का आ रहा है। जैसा कि यहाँ रखा हुआ है पानी, हमने दिखाया अभी इन लोगों को। और ये गटर लाइन है, तकरीबन 11-12 जगहों पे FC एरिया में ये गटर लाइनें बंद हैं। पानी तो यहाँ आता है तो जब सीवरेज का निज़ाम ख़राब होता है तो पानी तो फिर बेकार ही होता है। गटर का पानी मिक्स आता है, कभी आता है तो वैसे ही आता है बेकार पानी। FC एरिया के शहरी बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं, जबकि मुताल्लिका इदारों की कारकर्दगी पर भी सवालात उठ रहे हैं। देखना यह है कि हुक्काम इस संगीन मसले के हल के लिए कब अमली इक़दामात करते हैं। कैमरामैन हसनैन जाफरी के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21। आरामबाग फर्नीचर मार्केट में तजावुज़ात के खिलाफ कार्रवाई के दौरान असिस्टेंट कमिश्नर आरामबाग ने मुताद्दिद दुकानें और गोदाम सील कर दिए हैं। कार्रवाई की जद में ताजर रहनुमाओं की दुकानें भी आ गई हैं। चेयरमैन ऑल कराची ताजर इत्तेहाद अतीक मीर और तर्जमान ऑल सिटी ताजर इत्तेहाद इस्माइल लालपुरिया की दुकानें भी सील कर दी गई। काविश में उनकी रिपोर्ट। आरामबाग में तजावुज़ात के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन, मुताद्दिद दुकानों पर ताले लग गए, ताजिर रहनुमा भी ना बच सके। आरामबाग फर्नीचर मार्केट में तजावुज़ात के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए असिस्टेंट कमिश्नर आरामबाग ने 100 से ज्यादा दुकानें और गोदाम सील कर दिए। कार्रवाई की जद में ताजिर रहनुमाओं की दुकानें भी आ गईं। चेयरमैन ऑल कराची ताजिर इत्तेहाद अतीक मीर की दुकान भी सील की गई, जबकि ऑल सिटी ताजिर इत्तेहाद के तर्जुमान इस्माइल लालपुरिया की दुकान भी बंद कर दी गई। इस्माइल लालपुरिया ने कार्रवाई पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि इंतजामिया को दुकानें सील करने का कल्चर ख़त्म करना चाहिए। उनके मुताबिक बाज़ ऐसी दुकानें भी सील की गईं जहां तजावुज़ात मौजूद ही नहीं थीं। देखिए, तकरीबन 100 से ज़्यादा दुकानें हैं हमारे मार्केट के अंदर में, वो तमाम की तमाम दुकानें सील हो गई हैं और इसके साथ साथ कुछ गोदाम भी हैं
जो मतलब बाहर माल नहीं निकालते थे वो भी सील हो चुके हैं इस पे। अब इंशाल्लाह जो है वो पीर को जाएंगे हम डीसी साहब के पास या एसी साहब के पास, जो भी मीटिंग होती है, जिस तरह दीगर मार्केटों में जो SOPs है कि खुलने के जो तरीक़ेकार है कि आप एफिडेविट जमा करवाएं, तो उसी हिसाब से इंशाल्लाह लज़ीम हम जाके बात करके मार्केट खुलवा लेंगे। इस्माइल लालपुरिया कहते हैं कि आरामबाग में फुटपाथ पर तजावुज़ात ज़रूर मौजूद थीं, ताहम सड़क मुकम्मल तौर पर क्लियर थी। रात के वक्त अचानक दुकानें सील करना गैर मुनासिब इक़दाम है, जिससे ताजिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। और हमारी मार्केट में इंक्रोचमेंट सिर्फ फुटपाथ से थोड़े से ऊपर होती थी। रोड, हमारी मार्केट में कोई दुकानदार रोड पे माल नहीं रखता, क्योंकि एसोसिएशन की बड़ी सख्ती है इस मामले के अंदर में कि रोड पे नहीं, सिर्फ फुटपाथ पे थोड़ा बहुत माल होता है कुछ दुकानदारों का, जिसके लिए हम कहते हैं कि आइंदा इंशाल्लाह उसको भी हम मना कर देंगे कि जी वो फुटपाथ पे भी माल ना रखें। ताजिरों का कहना है कि पीर के रोज़ हल्फनामे जमा करवाए जाएंगे और यकीन दहानी कराई जाएगी कि आइंदा तजावुज़ात कायम नहीं की जाएंगी। कैमरामैन अजलान चीपा के साथ काविश मेमन, सिटी 21। कमिश्नर कराची की जानिब से आटे के नए सरकारी नर्ख जारी होने के बावजूद शहर में उन पर अमल दरामद ना हो सका। चक्की, पाइन और 2.5 नंबर आटा सरकारी कीमत से ज़ायद फरोख्त होने लगा है, जिस पर शहरियों ने शदीद तशवीश का इजहार किया है। काविश मेमन की रिपोर्ट। अवाम के लिए नया झटका, आटे की मनमानी कीमतों ने बजट हिला दिया, घर चलाना भी मुश्किल हो गया। शहर कायद की इंतज़ामिया ने आटे की नई कीमतें मुकर्रर करते हुए बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कमिश्नर कराची हसन नकवी की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक 2.5 नंबर चक्की आटे की होलसेल कीमत 110 और रिटेल कीमत 113 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की गई है। फ़ाइन आटे की होलसेल कीमत 118 और रिटेल कीमत 121 रुपये फ़ी किलो तय की गई है, जबकि चक्की आटे की रिटेल कीमत 145 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की गई है। कमिश्नर कराची की जानिब से नर्ख मुकर्रर होने के बावजूद शहर में इन पर अमल दरामद ना हो सका। मुख्तलिफ इलाकों में चक्की आटा सरकारी नर्ख से ज़ायद यानी 160 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। मार्केट में फ़ाइन आटा 121 रुपये के बजाय 140 रुपये फ़ी किलो, जबकि 2.5 नंबर आटा 113 रुपये की सरकारी कीमत के मुकाबले में 130 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त हो रहा है। रिटेलर्स का कहना है कि महंगे दामों खरीदारी के बाइस सस्ता आटा फ़रोख्त करना मुमकिन नहीं। इनके मुताबिक फ्लोर मिल्स ने सरकारी लिस्ट जारी होते ही कीमतें बढ़ा दी हैं, इसीलिए सरकारी नर्खों पर अमल दरामद मुश्किल हो गया है। फ्लोर मिलों ने अपने रेट निकाल कर, चक्की वालों ने अपने रेट निकाल कर आवाम दुकानदारों को देना शुरू कर दिया। अब 150 रुपये का चक्की का आटा दे रहे हैं और इसी तरह 120 रुपये का 2.5 नंबर दे रहे हैं। जब वो 120 रुपये का 2.5 नंबर देंगे तो क्या रिटेलर जो है वो जो एक बोरी अगर दिन में भी बेचता है तो वो किस तरीके से वो इसको गुजारा करेगा। शहरी कहते हैं कि अशिया ज़रूरिया की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं, लेकिन आवाम के लिए किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं दिया जा रहा। अभी हम तो हर आदमी जो गरीब आदमी जो बेचारा इतनी महंगाई में पिस रहा है, ना हम रोटी पूरी कर सकते हैं ना बच्चों को पूरी कर सकते हैं। ठीक है ना, गवर्नमेंट कर क्या, उनका तो अपना बैंक बैलेंस चल रहा है, उनका तो सरमाया चल रहा है, वो तो अपना पूरा कर रहे हैं। दूसरी जानिब कमिश्नर कराची ने हिदायत जारी की है कि तमाम दुकानदार नई कीमतों की फहरिस्त नुमाया जगह पर आवेज़ा करें और सरकारी नर्खों की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जबकि नर्खनामा आवेज़ा ना करने वालों के खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा। कैमरामैन अहमद के साथ काविश मेमन, सिटी 21। मोमिनाबाद टाउन की सरकारी डिस्पेंसरी गुज़िश्ता 10 बरस से बंद पड़ी है। शहरियों का कहना है कि सिंध हाई कोर्ट की जानिब से डिस्पेंसरी की तज़ीन व आराइश और तिब्बी अमले की तैनाती के अहकाम जारी किए जा चुके हैं, मगर इसके बावजूद मोमिनाबाद टाउन इंतजामिया डिस्पेंसरी को फ़ाल न बना सकी। इस हवाले से देखिए रिजवान अहमद की ये रिपोर्ट। मोमिनाबाद टाउन में सरकारी डिस्पेंसरी की बंदिश तशवीशनाक, कोर्ट ऑर्डर्स के बावजूद मकामी आबादी इलाज की बुनियादी सहूलियात से महरूम। वॉलंटियर कॉलोनी में सरकारी डिस्पेंसरी 10 बरस से बंद पड़ी है। इलाका मकीनों ने शिकवा किया कि मामूली बीमारी की सूरत में भी दूर दराज अस्पतालों का रुख करना पड़ता है। नहीं, यहाँ पे कोई भी नहीं है, ना यहाँ का चौकीदार है। अभी भी यहाँ से चोरियाँ हो रही है, जो काम हुए वो दोबारा ख़राब हो जाएगा। यहाँ तो बहुत ज़्यादा नीड है, मजदूर तबका यहाँ करीब कोई भी हॉस्पिटल नहीं है, और प्राइवेट अस्पताल का तो आपको पता है कितनी महंगाई है, हर बंदे अफोर्ड नहीं कर सकता। शहरियों का कहना था कि सिंध हाई कोर्ट की जानिब से डिस्पेंसरी की तज़य्युन व आराइश और तिबी अमले की तैनाती के अहकाम
इंतजामात भी जारी किए गए हैं। चौकीदार भी तैनात न किया गया, जिसकी वजह से सामान चोरी हो रहा है। नाम यहाँ पर मेडिसिन वगैरह लोगों के लिए दस्तयाब है। आपके सामने है कि अभी भी बंद पड़ा हुआ है। यहाँ पर चरसी पोड्री आते हैं, यहाँ पर चर्च वगैरह बाकायदा मंशियात का एक अड्डा समझो चल रहा होता है। और मोमिनाबाद टाउन चेयरमैन की अगर बात की जाए तो सिर्फ करप्शन का बाजार गर्म किया हुआ है। एक महीने में तकरीबन 6 म्यूनसिपल कमिश्नर चेंज हुए, तो सिर्फ यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि वो टाउन चेयरमैन कैसा है। इलाका मकीनों ने मुतालबा किया कि टाउन इंतजामिया फौरी तिबी अमला तैनात करके डिस्पेंसरी को फ़आल बनाए ताकि शहरियों को बुनियादी तिबी सहूलियात मुयस्सर आ सकें। कैमरामैन हसनैन जाफरी के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21। कि मशरिक़ वस्ता में जंग के असरात से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज भी मुतासर। एक हफ्ते में 100 इंडेक्स में 5,519 पॉइंट्स की बड़ी कमी रिकॉर्ड की गई। सरमायाकार मोहतात दिखाई दिए। तफसील अशरफ खान की रिपोर्ट में। मुआशी बेयकीनी के साए, स्टॉक मार्केट शदीद मंदी की लपेट में आ गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के दौरान शदीद मंदी देखने में आई, जहां के SI 100 इंडेक्स 5519 पॉइंट्स कमी के बाद 1,65,596 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। हफ्तावार बुनियादों पर इंडेक्स में 3.22% कमी रिकॉर्ड की गई। कारोबारी हफ्ते के दौरान 100 इंडेक्स की बुलंद तरीन सतह 1,71,571 जबकि कम तरीन सतह 1,65,291 पॉइंट्स रही। स्टॉक माहिरीन का कहना है कि मार्केट में मंदी की बड़ी वजूहात में अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात में तातुल, खाम तेल की आलमी कीमतों में इजाफा और सरमायाकारों के एतमाद में कमी शामिल है। तवानाई की कीमतों में इजाफे और खित्ते की गैर यकीनी सूरत हाल ने मार्केट पर दबाव बरकरार रखा है। अभी जो सेंटर पॉइंट था जिस पे डिस्प्यूट है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है, और रीज़न यही है कि पूरी दुनिया की जो इकनॉमी है और उसकी जो एक्टिविटी है वो उसी रूट से होती है, और वो आप देखें कि काफ़ी टाइम हो गया है वहाँ पे डिस्प्यूट की वजह से वो एक्टिविटीज़ हमें नहीं आ रही नज़र, जिसकी वजह से आप देखें कि फ्लक्चुएशन जो हैं वो क्रूड ऑयल में बहुत ज़्यादा है। तो आने वाले दिनों में इंशाल्लाह होपफुली ये रिज़ॉल्व हो जाएगा। आप देखें कि आउटस्टैंडिंग जो है ना वो पे आउट रिटर्न रहा है 2025 में कमर्शियल बैंक्स का, उसके बाद सीमेंट सेक्टर है, ऑयल एंड गैस रिफाइनरीज है, और आपका एनर्जी सेक्टर्स है। तो जहां आप ये देखें कि मार्केट क्रैश करती है, मार्केट में लोगों को नुकसान होता है, तो वहाँ अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट होती है। रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान 127 अरब रुपए मालियत के 4 अरब 13 करोड़ शेयर्स का लेन देन हुआ, जबकि योमिया औसत कारोबारी हजम 82 करोड़ 70 लाख शेयर्स रिकॉर्ड किया गया, जो गुज़िश्ता हफ्ते के मुकाबले में 39% कम रहा। मार्केट कैपिटलाइजेशन भी 513 अरब रुपए कम होकर 18,389 अरब रुपए की सतह पर आ गई। अशरफ खान, सिटी 21।